Hello student, this is Vineeta Singh from SINGH School Nalia, and today we are going to discuss class 9 chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. Wow, this is in a chapter which is based on whose story recounts the life of an outstanding scientific personality, Albert Einstein, from his birth till his end. Okay, he was a genius. He gives a relativity formula. He is a greatest mathematician as well as a physicist also. So without any delay, let's start it. Let's learn about him, what he did and where he born and like all that life story. Let's start it. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seems much too large. Okay, so Albert Einstein का born कब हुआ था? उनका birth 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी के उल्म में हुआ था and उनका जो देख के उनको कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था या देख नहीं रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है या किसी ग्रेटनेस अचीव करने के लिए पैदा हुए हैं. मतलब नॉर्मल इंसान थे. उसके अपोजिटली अगर देखा जाए तो उनकी मदर जो थी उनको वो एक फ्रीक लग रहे थे. फ्रीक का मतलब होता है वो वर्ड जो हम यूज करते हैं किसी भी इंसान के लिए जो नॉर्मली जिसका बिहेव, जिसका लुक, जिसकी थिंकिंग जो है वो सबसे थोड़ी अलग रहती है. मीन्स वो उसको थोड़ा अनयूजुअल बोल सकते हैं एक तरह से. मतलब अजीब सा बंदा जो बोल सकते हैं वैसा उनको उनकी मदर को फील हुआ कि उनका जो बेबी है वो ऐसा है, फ्रीक है, क्योंकि उसका हेड जो है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज था. ओके, एट द एज ऑफ 2.5 years, Einstein still was not talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. Okay, at the age of 2.5, Einstein was still not talking, not able to talk a single word from his mouth. Okay, still he is not learned that how to speak with other persons and everything, how to get everything by speaking and all. He uttered everything, means he repeated every word twicingly. Okay, and then what happened? He did not know how to behave with other children, how to behave with his playmates, how to play with them, and like that. So their playmates, his playmates called him brother boring. Okay, so the youngster played by himself much of the time. अपने साथ ही वो अपने में ही खोए रहते थे. किसी बच्चे से ज्यादा बात नहीं करते थे. उन्हें पता ही नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ खेलना होता है, कैसे खेलना होता है. तो इसीलिए सारे बच्चे उन्हें क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग बोलते थे. और ज्यादातर उनका टाइम जो था वो अपने साथ ही गुजर जाता था. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he said to have he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" Okay, उन्होंने क्या किया उस टाइम पे जब उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत ज्यादा पसंद थे जिनमें व्हील्स होते हैं, जैसे कि रोबोटिक एरोप्लेन हो गया, ठीक है, रोबोटिक कार्स हो गई, ये सब उन्हें बहुत टॉयज पसंद थे. बट जब उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर हुई जिसका नाम आजा था, तो उसके पैरों को देख के वो बोलते हैं कि ठीक है ये सिस्टर है, बाकी सब ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स? इसके व्हील्स कहाँ है? उसके पैरों को देख के वो बोलते हैं इसके व्हील्स कहाँ है, ये कैसे मतलब मूव करेगी, इसके तो व्हील्स ही नहीं है. ओके, उसे मतलब वो अपनी सिस्टर को भी he is considered as a mechanical toy. Okay, then a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't be matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play. He will never make a success at anything. Okay, उनके जो हेडमास्टर थे, okay, जो प्रिंसिपल होते हैं वैसे हेडमास्टर होते हैं, तो उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने फादर को उनके जो फादर थे उनसे बोला कि आइंस्टीन अपने प्रोफेशन के लिए क्या चूज करता है क्या नहीं करता है वो कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. ओके, देन आइंस्टीन began learning to play the violin at a age of 6 because his mother wanted him to do, and he later became a gifted amateur
violinist, maintaining this skill throughout his life. Okay, उसके बाद at the age of 6 Einstein would start the learning of playing violin. Okay, violin चलाना उन्होंने सीख लिया था, और क्योंकि उनकी मदर को चाहिए था कि हाँ उनके बेटे को violin आना चाहिए. Okay, it's like that. And धीरे धीरे करके वो एक अमाचर का मतलब होता है कि ऐसा इंसान या फिर जो कि कोई भी चीज करता है तो वो इंजॉयमेंट के लिए करता है, ना कि प्रोफेशन के लिए. ठीक है, तो वो इंजॉय करने वाले वायलिनिस्ट बन चुके थे, बहुत अच्छे से वायलिन गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन चुके थे वो उस टाइम तक. ठीक है, एंड ये जो उनका तो शौक था वो उन्होंने लाइफ टाइम तक पूरा किया. ठीक है, उसको थ्रू आउट द लाइफ उसको फॉलो किया. बट एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मोनाक, where Einstein family had moved when he was 15-month old, and scored good marks in almost every subject. Okay, एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो एक मतलब बहुत ही अच्छे विद्यार्थी जो बोल सकते हैं. ठीक है, बबल का मतलब होता है विद्यार्थी जो है, मतलब शरणागत जो होते हैं. ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब बुरे नहीं थे. इसलिए तो उन्होंने क्या किया, अपनी हाई स्कूल जो थी मोनाक में ही कंप्लीट की थी. उनकी फैमिली जो थी उनको वहां पे 15 मंथ्स तक उनके साथ रही थी, उसके बाद उनको छोड़ के वहां से मूव कर गए थे वो. लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर किया. आइंस्टीन को hated the school's regimentation. regimentation होता है एक ऑर्डर या डिसिप्लिन का ऑर्डर जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होता है, बहुत स्ट्रिक्ट लेवल के जो होते हैं रेजिमेंटेशन, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है. एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. वहीं पे आइंस्टीन जो थे उनको स्कूल का रेजिमेंट बिल्कुल पसंद नहीं था. काफी बार उनके टीचर्स से इस बारे में बात भी हो जाती थी. एंड एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन ने क्या किया, स्टिफल्ड. स्टिफल्ड का मतलब होता है सफोकेटेड फील करना, या फिर मतलब आपको ऐसा फील हो कि आप ब्रीथ ही नहीं ले पा रहे हो. ठीक है, बहुत ज्यादा स्टिफल्ड फील हो रहा था उनको, और उन्होंने कुछ अच्छा करने के लिए अपनी स्कूल वहीं पे ड्रॉप कर दिया. ओके, द प्रीवियस ईयर, उसी साल में, मतलब जो पिछली साल थी, एल्बर्ट्स के पेरेंट्स जो थे वो मोनाक से कहाँ आ गए थे, मिलान आ गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव, अपने रिलेटिव्स के साथ अपने बच्चे को छोड़ दिया था वहां पे. एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, उसके बाद में आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. ओके, एंड इन अ सिटी व्हिच वाज मोर लिबरल देन मोनाक. लिबरल का मीन्स होता है कि जो मतलब दूसरों की बातों को भी मतलब रिस्पेक्ट करवाते हैं. अगर स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो टीचर से कुछ बोल रहा है, तो वो लोग मतलब अपने स्ट्रिक्टली जो रेजिमेंटेशंस है वहां के उनको फॉलो ना करके एटलीस्ट दूसरों की बातों को सुनेंगे, उनके रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड एक ऐसे सिटी जो बहुत ज्यादा लिबरल है रूल्स डिसिप्लिन को लेके मोनाक के अकॉर्डिंगली, तो वो वहां जाके अपनी पढ़ाई को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ओके, Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics also. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. ठीक है, उन्होंने मतलब मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स थी उनकी, उनको फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था. तो जैसे उन्होंने स्कूल अपनी फिनिश किया, स्कूल फिनिश करने के बाद वो कहाँ चले गए, जुरैक यूनिवर्सिटी में चले गए. बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद अ walrus mouth shape. विद वॉलरस माउस शेक. ओके, सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से जो यंग मैन जो था वो वहां गया था. ठीक है, जैसे आप देख रहे हो उस टाइम पे एज उनके आइंस्टीन की क्या थी, 21. ओके, 21 एज थी. तो मतलब स्मार्ट डैशिंग यंग मैन के लिए सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से उसने जुरैक यूनिवर्सिटी को चूज किया था. उसके अलावा भी क्या था, he also felt a special interest in a fellow student Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. उनको एक स्पेशल इंटरेस्ट था अपने फेलो स्टूडेंट, मतलब अपने साथ की जो गर्ल थी, वो मतलब स्टूडेंट थी, उसके साथ की जो पार्टनर थी मिलेवा मैरिक में. उन्होंने देखा कि ये मतलब बहुत ही ज्यादा क्लेवर क्रिएचर मीन्स बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंस लेवल उसका जिसका हाई होता है. सॉरी. This young Serb has come to Switzerland, became the university in Zurich, was one of the few in Europe where women could get degrees. Okay, ये सिर्फ उस टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी इन जुरैक, जिसमें क्या था, वुमेन्स को भी डिग्रीज दी जाती थी. आइंस्टीन सॉ इन हर एली. एली मीन्स होता है अपना फ्रेंड या पार्टनर. ठीक है, एली अगेंस्ट द फिलिस्टियन. फिलिस्टियन मीन्स एक ऐसा वर्ड जो हम यूज करेंगे उन लोगों के लिए जिनको आर्ट्स, लिटरेचर या म्यूजिक किसी चीज में
कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसने ये देखा कि उनके अंदर भी क्या है, फिलिस्टीन, मतलब अगेंस्ट फिलिस्टीन है, मतलब वो भी, एंड दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds, जिनसे वो दूर रहती थी, वो ऐसे इंसान थे जिनको बिल्कुल भी आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक जिनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, उनके चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले उनके स्टूडेंट्स हो, ठीक है, स्टूडेंट मेट्स हो, कॉलेज मेट्स हो। The couple fell in love. उन दोनों को finally love हुआ. Letters survive in which they put their affection into word, mixing science with a tenderness. Okay, उनके जो letters थे उन्होंने मतलब शेयर करने शुरू कर दिए हैं. उनके अंदर भी लेटर्स में भी ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे जिनको साइंस के साथ मिक्स कर लिया जाता था, और उनकी टेंडरनेस के साथ, टेंडरनेस मीन्स होती है सॉफ्टनेस. ओके, देन आइंस्टाइन ने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव brought our work on relativity to a victorious conclusion. उन्होंने किस तरीके से उसे बोला कि ये कितना अच्छा और कितना प्राउड मोमेंट होगा मेरे लिए कि अगर तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ काम करो रिलेटिविटी पे, क्योंकि उस टाइम पे वो रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो रिलेटिविटी पे अगर तुम मेरे साथ काम करो और लास्ट में कंक्लूजन क्या हो उसका, विक्टोरियस हो, हम जीत जाए, हम सक्सेसफुल हो जाए. ओके, इन 1900 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed. उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कर चुके थे बट अनएम्प्लॉयड थे, उनको कोई जॉब नहीं थी उस टाइम पे. He worked as a teaching assistant and gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. Bern के patent office में 1902 में उनको एक फाइनली जॉब मिल गई. उससे पहले वो क्या किया करते थे, एज अ टीचिंग असिस्टेंट वो काम करते थे और प्राइवेट लेसन्स जैसे ट्यूशंस वगैरह होते हैं वो भी बच्चों को पढ़ाया करते थे, ठीक है. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics. वो अपने डेस्क ड्रॉवर को मतलब सब लोगों के साथ में जो कर रहे हैं उनको असिस्ट करने, मतलब असिस्टेंट, एज असिस्टेंट उनकी वहां पे जॉब लगी थी, तो वो असिस्ट भी करते थे, उसके साथ साथ वो अपना प्राइवेटली इन्वेंशन भी करते रहते थे. और मजाक के तौर पे वो अपने डेस्क जो है, डेस्क का जो ड्रॉर होता है जिसपे बैठ के काम करते थे डेस्क पे, तो उसका जो ड्रॉर है उसमें उन्होंने उसका नाम लिख रखा था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. ओके, one of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. अभी famous जो पेपर था उस टाइम पे 1905 में आइंस्टीन की, उसके अंदर कौन सी थ्योरी आई थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि टाइम और डिस्टेंस जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो एक साथ नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं. उसी तरीके से जिस तरीके से टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो दैट सेम टाइम इफ दे वर कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैव बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. उन्होंने बताया कि दो एक्यूरेट क्लॉक होती हैं, अगर वो दोनों एक्यूरेट है उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली सेम टाइम शो नहीं करेंगी. अगर एक जर्नी करके आती है तो हमें पता चलता है कि एक जो है वो चाहे कुछ सेकंड्स में ही फर्क क्यों ना हो, लेकिन मिली सेकंड्स में क्यों ना हो, लेकिन उनमें से एक फास्ट और एक स्लो हो जाती है. ओके, the relationship between the mass and energy is E is equal to mc square, where E stand for energy, m for mass, and c for speed of light in a vacuum, which is about 3 lakh kilometer per second. Okay, and he described it in his own word that when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes, and when you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's the relativity. Relativity को explain करने के लिए उन्होंने बोला है, अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ में बैठे हो 2 घंटे तक तो आपको वो 2 मिनट ही लगेगा, लेकिन अगर आप 2 मिनट तक किसी स्टोव पे, मतलब हॉट स्टोव पे बैठे हो, तो आपको क्या लगेगा, वो 2 मिनट भी क्या लगेंगे, बहुत ज्यादा 2 घंटे लगेंगे. ठीक है, तो यही है रिलेटिविटी. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Unraveling का मतलब होता है कि मतलब उसके प्राइवेट लाइफ जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी, वो
गिरना शुरू हो गई थी उसकी, स्टार्टिंग टू फेल. ओके. एंड एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. शी थॉट मिलेवा, हु वाज a 3 year older than her son, was too old for him, and she was also bothered by Mileva's intelligence. She is like book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. उस टाइम पे क्या हुआ था, डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो फिजिक्स की. उसी टाइम पे प्राइवेट लाइफ में उनकी इतनी ज्यादा हलचल हुई, इतना ज्यादा मतलब मोरली उनका डाउन हुआ. क्यों? क्योंकि मिलेवा जो थी वो एल्बर्ट से दोनों शादी करना चाहते थे, बट उनकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद ही, बट उनके मदर ने उसको मना कर दिया, क्योंकि मिलेवा जो है वो आइंस्टीन से 3 year old बड़ी है. उसके साथ साथ ही क्या है कि वो मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी बहुत ज्यादा उनको खल रही थी, क्योंकि वो भी एक बुक है, लाइक बुक लाइक यू, मतलब आइंस्टीन की तरह ही वो बुक की तरह थी, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल था उसके अंदर. तो उन्होंने आइंस्टीन ने क्या किया कि उनकी जो वेडिंग थी उसको कुछ समय के लिए टाल दिया. ठीक है. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. उसके बाद में 1903 में उनकी शादी हुई. उसके बाद उनको 2 बच्चे हुए. बट अ फ्यू लेटर द मैरिज फेल्टर्ड. फेल्टर्ड का मतलब होता है कि उनका जो बॉन्ड था, उनका जो रिलेशन था वो बहुत ज्यादा वीक होने लगा था, उनमें लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambitions and became an unhappy housewife. After a year of constant fighting, the couple finally divorced in 1919 and Einstein married his cousin Elsa the same year. Okay. 1903 में उनके 2 सन हुए, शादी हुई. उसके बाद में क्या हुआ कि उनकी मैरिज जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्या होने लगी थी, वीक होने लगी थी. मिलेवा जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल जिसका बहुत ज्यादा हाई था, एम्बिशियस थी, बट उनके बच्चे के कारण, फैमिली के कारण, तो वो सारे एम्बिशंस जो थे वो टूट चुके थे और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी. उसके बाद काफी ईयर्स तक दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइटिंग हुई और लास्टली 1919 में क्या हुआ, उनका डिवोर्स हो गया. एंड आइंस्टीन ने उसी ईयर अपनी कजिन एल्सा से शादी कर लिया. ओके. आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity, an eclipse of the sun. ओके. आइंस्टीन का अभी नया पर्सनल चैप्टर स्टार्ट हो रहा था. ठीक है. यहाँ से वर्ल्ड फेम के लिए इन 1915 उन्होंने क्या किया, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया. ठीक है. न्यूज़पेपर्स में उनका खूब हुआ, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी को इंक्लूड करके उन्होंने रिलेटिविटी बताया. ठीक है. और एक एक्लिप्स था सन का इन 1919 में, उन्होंने वो प्रूव कर दिया कि उनकी जो ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, वो ट्रूथ है. आइंस्टीन ने करेक्टली कैलकुलेट किया था एडवांस में कि कब विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. वो जो स्टार है उसकी जो लाइट है वो कब सन पे डिफ्लेक्ट होने वाली है, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कब पहुंचने वाली है, उन सब का उन्होंने करेक्टली क्या बता दिया था, करेक्टली उन्होंने पहले से एडवांस में वो चीज बता दी थी. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज एन साइंटिफिक रेवोल्यूशन. उस टाइम पे उसने न्यूज़पेपर वालों ने उनको क्या बोला था, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन कह के उनके काम को प्रेज किया था. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. ही वाज शावर्ड विद ऑनर एंड इनविटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस. आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज लिया 1921 में. उनको बहुत ज्यादा ऑनर मिला, बहुत ज्यादा इन्विटेशंस मिले वर्ल्ड में सब जगह पे उनके मतलब उनके ऑर्डर को सुनने के लिए एंड लाइक दैट ऑल. बहुत ज्यादा वो पॉपुलर हो चुके थे उस टाइम पे एंड प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह सब लोग उनके लॉडेड रहते थे वहां पे. ठीक है. When the Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists is in uproar. उस टाइम पे क्या हुआ था, नाजिस जो कि जर्मनी के पावर में आ गए थे 1933 में. आइंस्टीन उस टाइम पे इमाइग्रेट हो चुके थे, यूनाइटेड स्टेट से चले गए थे, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे. 5 साल बाद में जब उनको पता चला कि अमेरिकन फिजिसिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपसेट है. अप्रोर, इन एन अप्रोर मीन्स होता है बहुत ज्यादा अपसेट होना. ठीक है. अपसेट है ड्यू टू द
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, बर्लिन के अंदर कोई न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उस वजह से. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड विद फ्रॉम फैशियम जस्ट एज एन आइंस्टीन हैड. उस टाइम पे सबको बहुत ज्यादा उस चीज का डर लग रहा था, बहुत मतलब ऐसा फील हो रहा था कि बहुत बुरा होने वाला है. आइंस्टीन के जैसे ही सबको भी लग रहा था. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. और उसके बाद में अब उस न्यूज को सुनने के बाद सभी जितने भी अमेरिकन के साइंटिस्ट थे, मतलब फिजिस्ट थे, उन सबको, आइंस्टीन के साथ ही, तो उन सबको ये लग रहा था कि अब नाजिस जो है अगर वो आ जाता है पावर में तो वो अब क्या करेगा, एटॉमिक बॉम्ब का क्या करेगा, यूज करेगा. एट द अर्गिंग ऑफ कलीग्स, कलीग्स मतलब होता है अपने साथ में काम करने वाले. कलीग्स के बार बार मतलब फोर्स करने पर आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939 एंड इन विच ही वॉर्न, और उन्होंने इसमें उनको वॉर्न किया था, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप मीन्स न्यूक्लियर बॉम्ब, ओके. ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज. एक सिंगल बॉम्ब भी अगर आप डालते हो किसी भी पोर्ट पे तो वो उस पोर्ट के साथ साथ उसके साथ आसपास में लगने वाली जो टेरिटरीज है, उनके बॉर्डर लाइंस जो है, उनमें भी अफेक्ट कर सकता है, उसको भी एक्सप्लोड कर सकता है. एंड हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन अफेक्ट, और उनके वर्ड जो थे वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे. अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में आप सबने सुना ही है, 1945 में जो ये हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब्स जो ड्रॉप किए गए थे, तो अमेरिका ने क्या किया, सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब्स को डेवलप किया और उसको ड्रॉप कर दिया कहाँ पे, जापानीज सिटीज में, हिरोशिमा एंड नागासाकी में, ठीक है, 1945 में. Then Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United States. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. Einstein जो था वो बहुत ज्यादा deeply shaken हो चुके थे, बहुत ज्यादा उनको बुरा लग रहा था ये सारे डिस्ट्रक्शंस को देख के, इतना बर्बादी देख के. तो इस टाइम पे उन्होंने क्या किया, पब्लिक मिसिव मतलब होता है पब्लिकली उन्होंने एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है, और उनको बोला, प्रपोजल रखा उनके सामने कि अब हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए, ओके. अनलाइक द लेटर टू रोजनवेल्ट की जैसे ही ये जो लेटर था इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, बट आगे की तरफ जाते जाते आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. आइंस्टीन जो है वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे थे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. अपनी जो पॉपुलरिटी थी उन्होंने उसको यूज किया कैंपेन्स में, किस चीज के लिए, पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए, ओके. व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस. उनको 1955 में जब उनकी डेथ हो गई थी 76 एज में, सभी लोगों ने